Good morning, students. I hope you all are doing very well. So today we are going to learn about the medieval history topic, that is Delhi Sultanate. So as already in the class I have mentioned you that Delhi Sultanate consists of 5 dynasty, that is Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty. So this was the era of Delhi Sultanate. It consists of several people of group. अब हुआ ऐसे था कि दिल्ली सल्तनत started from 13th century to 16th century. It was brought up by Muhammad Ghori. So when Muhammad Ghori came from Afghanistan to the India in Delhi, when he started he founded that India was very prosperous and very wealthiest country. तो उस पर्पस से वो इंडिया आया था. उसने सोमनाथ के मंदिर को भी मतलब मंदिर में से काफ़ी खजाना लूटा था. Now when he came to India and he encountered with the prominent leader of our king of our country, that was Prithvi Raj Chauhan, who by birth who belongs from Ajmer itself. Now Muhammad Ghori encountered with Prithvi Raj Chauhan for 2 times. In the first battle of Tarin, that was 1191, and in the second battle of Tarin. In the first battle of Tarin क्या हुआ था कि Muhammad Ghori lost the battle with from this Prithvi Raj Chauhan. But for the very second battle, Prithvi Raj Chauhan was the victim of a conspiracy. That means उनके अपनों ने ही उनको धोखा दिया था. That means the some trustworthy person of Prithvi Raj Chauhan shares the very critical information, the confidential information with Muhammad Ghori, and which led to the defeat of Prithvi Raj Chauhan on the second battle of Tarin. So when Muhammad Ghori came over here, so Muhammad Ghori wasn't able to set up his own firm over here क्योंकि उसे अपनी किंगडम वापस जाना था. तो उसने सोचा that if he have came in India now, it's necessary कि वो अपना मतलब आइडेंटिटी छोड़कर जाए, अपनी आइडेंटिटी को हिस्ट्री में मेमोराइज करे. सो ही जस्ट लेफ्ट वन ऑफ हिज लेफ्ट कुतुबुद्दीन ऐबक एंड told him that ki told him to enhance his dynasty, to enhance his kingdom in future. So this Qutbuddin Aibak, he was a slave of Muhammad Ghori, and he decided to find the slave dynasty or Mamluk dynasty. Mamluk dynasty या slave dynasty का दूसरा नाम Mamluk dynasty था, which was founded by Qutbuddin Aibak. Okay, so दिल्ली सल्तनत की सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी थी? Slave dynasty or Mamluk dynasty. So let's look over the time period of ruling of slave dynasty or Mamluk dynasty, that is 1206 to 1290. Basically it states that Delhi Sultanate was founded from 1206 to 1290. It was found, the main rulers of it were Qutbuddin Aibak, he was the founder. Iltutmish was the son-in-law of Qutbuddin Aibak. Afterward, there come many other incompetent ruler जो इल्तुतमिश के बाद जो आए थे वो भी अलग अलग रूलर्स थे. कहाँ के? दिल्ली सल्तनत के. And apart from that, they have only mentioned the mentioned the capable rulers. Thus after Iltutmish there came the Ruknuddin. रुकनुद्दीन को जो किंग बनाया था, ही वॉज फोर्सफुली मेड किंग बाय द प्रेशराइजेशन ऑफ हिज मदर. रुकनुद्दीन अपनी माँ की वजह से राजा बना था, जबकि वो उतना कैपेबल नहीं था राजा बनने के लिए. रुकनुद्दीन की एक बहन थी जिसका नाम था रज़िया सुल्तान. रज़िया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. शी वाज वेरी कैपेबल एंड शी रूल्ड फॉर दैट डायनेस्टी फॉर 4 years. वाई? बिकॉज आपको वी ऑल नो दैट द मुस्लिम कम्युनिटी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स women. They were very strict towards women, and they consider women only to follow the orders of the men, not to impose the order on men. मतलब वो ऑर्डर को फॉलो कर सकती है, ऑर्डर दे नहीं सकती है. सो दिस वॉज एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हर्टिंग द मेन्स ईगो. Okay, so Razia Sultan, he was the first ever Muslim lady who ever ruled India. She was the first ever ruler. Okay, but why she was not being supported by the kingdom? Because the kingdom was a part of patriarchy. patriarchy का मतलब क्या होता है? patriarchy का मतलब होता है जिस सोसाइटी में मेल को ज़्यादा
प्रायोरिटी मिलती है। ओके, सो अब जो रज़िया सुल्तान थी उसका क्या एक मीन्स सेक्रेटरी समझ लीजिए, या उसका एक बहुत ट्रस्टवर्थी वर्कर था जो उसके बिहाफ में काम करता था, उसका नाम था याकूट। याकूट रज़िया सुल्तान के साथ बहुत सारे वॉर्स लड़े और उसे जिताया भी, बट देयर वॉज अ किंग नेम अल्तुन्या। अल्तुन्या क्या था, एक कंपिटिटर ही समझ लो किसका, रज़िया सुल्तान का। तो वो चाहता था कि रज़िया सुल्तान को कैसे तैसे वश में किया जाए, यानी मीन्स टू स्टॉप रज़िया सुल्तान एक्शन व्हाट ही डिड इज़ दैट, पहले उसने याकूट को मरवाया। नाउ याकूट वॉज द राइट हैंड ऑफ रज़िया सुल्तान, नाउ शी वॉज वेरी इनकेपेबल, एंड आफ्टरवर्ड रज़िया अल्तुन्या ऑल्सो इम्प्रिजन राजिया, मतलब फिर बाद में जैसे याकूट को मरवाने के बाद राजिया सुल्तान का किंगडम और उसकी पावर कमज़ोर पड़ गई थी। देन अल्तुनियास इम्प्रिजन, यानी उसे कालकोठरी में डाला, एंड देन आफ्टर some period of time Altunia married Razia Sultan, and afterward they both of them they started ruling, but Razia became द विक्टिम ऑफ कंस्पायरेसी, यानी वो धोखाधड़ी के केस, मतलब धोखाधड़ी की वजह से क्या हुआ, उनका असासिनेशन हो गया। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, असासिनेशन का मतलब क्या है, समवन बीइंग किल्ड फॉर अ पॉलिटिकल रीजन, एंड शी वाज किल्ड इन नियर कैथल विच इज़ इन हरियाणा। ओके, so Razia Sultan after the means Ghiyasuddin Balban was the very last ruler of slave dynasty. Now one thing is there that कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालीसा बोल के एक सिस्टम चालू किया था। चालीसा मतलब क्या होता था, जिसमें एक ग्रुप ऑफ 40 सोल्जर्स होते थे जिनकी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती थी, उन्हें स्पेसिफिकली वॉर के लिए तैयार किया जाता था। तो गियासुद्दीन बलबान ने वो चालीसा वाला जो फॉर्म है वो हटा दिया था, बिकॉज उसके हिसाब से ये चीज़ क्या थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। नाउ खिलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन 1290 एंड इट लास्टेड टिल 1320। खुरम खान था सॉरी, कायकूबाद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। Tughlaq dynasty was founded by Muhammad bin Tughlaq and it was lasted till Firoz Shah Tughlaq. Sayyid dynasty was founded by Khizr Khan, and Khizr Khan was one of the ascended well-wisher, or the he was sent by Taimur Ali Khan. He was a Turkish, not Taimur, yeah, Taimur. Khizr Khan was the nominee of Taimur Khan. Taimur was one of the most cruel king of the medieval era. वो बहुत ज़्यादा cruel था. He belonged from the Turk. Now the last one was Lodi dynasty, and Lodi dynasty was founded by Ibrahim Lodi. इसमें आपका एक question है that who founded this city of Agra? That was the founder of this Lodi dynasty was Balol Lodi, and the last ruler was Ibrahim Lodi, who was engaged in the first battle of Panipat held in 1526. Now let's look after the important facts, that is regarding the Qutbuddin Aibak. Now Qutbuddin Aibak ruled for 4 years itself, that is 1206 to 1210. He was most trusted slave of Muhammad Ghori. Being a trusted slave, उसने उसका पालन किया, and then he founded a dynasty named as slave dynasty. अब इनकी मौत कैसे हुई थी? He died while playing चौगान. चौगान is a northeast word which is placed for the polo. Polo is a kind of game जिसमें क्या होता है, it's a kind of desi hockey which is played while riding the horse, and he was named as Lakh Baksh, ruler of lakhs. Okay, Lakh Baksh का मतलब क्या होता है? He is the ruler of lakhs. He constructed the Quwaitul Islam Mosque in Delhi, and ढाई दिन का झोपड़ा है अजमेर। ढाई दिन का बोलते हैं इसे। ढाई दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है because this hut was constructed in the period time of 2.5 days, and he constructed that ये जो इसके आर्किटेक्चर्स बता रखे हैं, ये क्या फुल्ली कंस्ट्रक्टेड थे, इसका जो कंस्ट्रक्शन अधूरा नहीं रहा था। सो दिस 2 थिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक कम्प्लीटली, दैट इज़ ढाई दिन का झोपड़ा एंड कुवैतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, वो एक पुरानी दिल्ली पे है। नाउ he also started the construction of Qutub Minar in the honor of ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या थे? एक सूफी सन थे who was followed by कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, सो लेट्स लुक आफ्टर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बेसिकली क्या था कि he was the son in law of कुतुबुद्दीन ऐबक who ruled for how many years?
he ruled for 26 years, and then he from 1210 to 1236 the real consolidator of Turkish conquest, यानी ये तुर्क का एक मीन्स तुर्किश कॉन्क्वेस्ट का एक पार्ट था. नाउ हिज मेजर रोल वाज दैट कि इसने दिल्ली को चंगेज़ खान के चंगुल से बचाया था, और इसने करेंसी भी इंट्रोड्यूस की थी. दूसरा, he started providing इक्ता. It was a system which was providing a land to the soldiers and nobility. Nobility कौन थे? They were working for the collection of taxes, looking after the treasury and all. Chahalgani system, that was Chalisa system. It was started by, basically by the books it has been mentioned that it was Chalisa was started by इल्तुतमिश itself. तो इक्ता सिस्टम क्या था कि ये मतलब जो इनको सैलरी मिलना एंड देन इंसेंटिव मिलना, इट वाज अंडर द इक्ता सिस्टम, जो भी किंग के लिए काम करता था, विच वाज अंडर सोल्जर्स एंड नॉबिलिटी. चहलगानी सिस्टम और चालीसा सिस्टम, इट वाज अ सिस्टम ऑफ स्लेव्स और सोल्जर्स ऑफ हैविंग द ग्रुप ऑफ 40. चालीसा क्या होता था? इट वाज अ नॉबिलिटी ऑफ स्लेव्स विच वाज नोन फॉर द 40 ग्रुप्स ऑफ slaves. Now he completed the construction of कुतुब मीनार. Okay, means कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, बट कंप्लीट नहीं हो पाया just because he died. But Iltutmish completed the construction of कुतुब मीनार. Now Razia Sultan, as she was the first Muslim lady who ever ruled India for only 4 years as her father itself. Through a popular rule, she was disliked by Chahalganis. Chahalgani कौन थे? They were 4 slaves of group of 40 who used means who wanted to put a puppet ruler at the throne. Puppet मतलब जो उन चहलगानी कौन होते थे? बेसिकली आप उन्हें जूरी समझ लीजिए. दे वर लाइक ग्रुप ऑफ 40. उन्हें एक किंगडम के बहुत क्रिटिकल सिचुएशन के लिए, सर्कमस्टांसेस के लिए, हर एक डिसीजन के लिए प्रिपेयर किया जाता था कि वो अपना सजेशन दे. अब उनका रज़िया सुल्तान वाज अ काइंड ऑफ रूलर जो अपने हिसाब से करती थी. अब उन चहलगानी को इसलिए प्रॉब्लम थी कि हमें जिस काम के लिए यहाँ बैठाया गया वो काम हमें ये करने नहीं दे रही है. सो वी वांट अ पपेट जो हमारे सजेशंस पे काम करे, ना कि हमें सजेशन दे. एंड इफ शी इज़ अ women, then we are not going to follow any of the orders by this women. She was defeated and killed by bandis while in a fight. She was a victim of conspiracy. 1240 to 66 क्या था? एक एरा था जिसमें दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने गई. जिस में द वीक रूलर्स में कौन कौन आते थे? बैरम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद. एंड द लास्ट रूलर, ही वाज नॉट इनकम्पिटेंट. वो वीक नहीं था, उसने बहुत सारी चीज़ों के लिए दिल्ली सल्तनत के पहली डायनेस्टी को बचाया था. दैट वाज गियासुद्दीन बलबान. Now means the era of Balban, because he was unique among all the slave dynasty rulers. A strong and centralized government was established. उसने हर एक चीज़ को systematic order में शुरू किया. He acted champion of Turkish nobility. He broke the strength of Chahalgani. Now ये question हो सकता है that चालीसा या चाहलगानी system शुरू किसने करवाया and who ended it? Okay, to restore the power of monarchy. Monarchy क्या होता है कि एक singular power. ओके, मोनार्की मीन्स एक सिंगुलर पावर जो किंग के थ्रू होती है. चाहलगानी में क्या होता था? 40 लोग. बेसिकली चाहलगानी सिस्टम थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव था क्योंकि 40 ग्रुप के जो पीपल थे, दे यूज्ड टू गिव द बेटर सजेशन कंपेयर टू अ पर्सन हु इज़ ऑन द मोनार्की, जो अपने हिसाब से डिसीजंस देता था. बट उसे लगा कि अभी किंगडम को सिर्फ एक डिसीजंस की ज़रूरत है, ना कि 40 डिसीजंस की. एंड ही इस्टेब्लिश दीवान-ए-अर्ज़ मिलिट्री डिपार्टमेंट टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. इसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी इसीलिए थी क्योंकि इसने आर्मी पे काम करना शुरू किया. ही स्टार्टेड प्रोवाइडिंग देम सैलरी, बेसिक फैसिलिटीज़. ही अडॉप्टेड द ही वाज वेरी लाइक ही वाज कंपेयर्ड विद द अलेक्जेंडर द ग्रेट. एंड ही इज कंसिडर दैट कि ब्लड एंड आयरन वाली पॉलिसी से ही हम एक अच्छा रूलिंग किंगडम बना सकते हैं और अपनी किंगडम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एंड सिजदा एंड पाइबोस क्या थे? एक तरीका था जिसमें मतलब स्लेव्स को यानी मोनार्क के सामने, मतलब जो भी किंगडम के लोग थे उनको मोनार्क मतलब एक मोनार्क का मतलब क्या होता है? इट्स अ इंडिविजुअल रूल
बेसिकली बाय अ किंग. सो मोनार्क कौन हो गया यहाँ पे? गियासुद्दीन बलबान. तो इसने सिजदा और पाइबोस इंट्रोड्यूस किया था. इसका सिजदा मीन्स व्हाट? प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्क, मतलब अपने मोनार्क के सामने झुकना पड़ता था. और पाइबोस मतलब किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, मतलब झुक कर, मतलब जैसे ही मोनार्क आता था, किंग आता था, उनको अपनी पल के नीचे करके गर्दन झुका लेनी पड़ती थी. इट वॉज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट टू द मोनार्क. दूसरा पाइबोस क्या था? दैट इट वॉज किसिंग द फीट ऑफ द मोनार्क एज द नॉर्मल ऑफ सैल्यूटेशन. ठीक है, जैसे ही मोनार्क आता था उसकी फीट को किस करना पड़ता था. दैट वॉज पाइबोस. एंड सिजदा मीन्स सर झुकाकर खड़े होना. Okay, and he took the title of Jin-e-Ilahi. That means she was the Jin-e-Ilahi का मतलब क्या होता है? Shadow of God. Now चेंगिस खान. चेंगिस खान ही मीन्स इन बिटवीन आया, मतलब चेंगिस खान का तुर्किश का वो प्रोमिनेंट पार्ट था विच वॉज, देखिए यहाँ पे it has been brought up with the rulers that was named under it. He was Iltutmish. ठीक है, he was a consolidator of Turkish conquest. कंसोलिडेट मतलब करना, यानी मतलब कुछ हद तक राहत दिलाना. तो द मोगल लीडर हु प्राइडेड इन बीइंग कॉल्ड ऑफ कॉरेज, कॉर्ज ऑफ गॉड. कॉर्ज मतलब समाओ वरदान, मतलब जो होता है ना, जो भगवान के वरदान से हुआ हो या चमत्कार से हुआ हो. ये अटैक ख्वारिज़मी एम्पायर एंड शेक द फ्लोरिशिंग सिटीज. दिल्ली सल्तनत बिकेम द ओनली इंपॉर्टेंट इस्लाम स्टेट ऑफ दिस period. Iltutmish in 1221 refused an asylum request of Jalauddin, who was defeated by Genghis Khan. Genghis Khan did not cross the river Indus, which saved the weak sultanate from loot and plunder. Now ये चेंगिस खान आया था एक पर्पस के लिए, बट ही फेल्ड बिकॉज दिल्ली सल्तनत में ऑलरेडी पावरफुल रूलर्स थे. अब क्या वो इंडस रिवर के किनारे था, जिसने उसने अपनी पूरी सेना के साथ रेडी किया अपने आप को कि हम यहाँ पे लूटने जाएंगे और उस डायनेस्टी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनना चाहेंगे. But they were not able to cross the river, so that problem was means eliminated. That problem was not created by Genghis Khan. Now this was the you can see over the map that this is the area. This was the area of the Delhi Sultanate, which was concluding each and means they were preparing each and area to loot it over and to conquer the each area of that particular place. Why this part of some part of Rajasthan and Gujarat is not being added? Just because that time Gujarat, Rajasthan and each different area were ruled by the other kings. But right from Afghanistan, Pakistan and the Kashmir area, Tibet, China, and regarding the West Bengal, UP, this area were conquered by the, even Bihar also were conquered by the, yes, what to say, conquered by Delhi Sultanate. Now for today I guess we'll learn two dynasty. Now the next one is means Khilji dynasty. Now we all know that Khilji dynasty was founded by Jalaluddin Khilji. Khilji dynasty was founded in 1290 and he ruled till 1296. That means 6 years. He checked that monopoly of Turkish nobility and followed a policy of tolerance. That means he also followed the kind of dictatorship and वो अपने monopoly पे काम करता था. That means monopoly is a specific rights in order to rule or trade. He separated religion from politics. That was अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? धर्म और पॉलिटिक्स को दोनों को अलग किया. कुछ लोग क्या करते थे? खिलवाड़ करते थे पॉलिटिक्स के साथ, कि धर्म और पॉलिटिक्स को एक करके लोगों को उकसाते थे कि हम लड़ेंगे. बट ही कीप द क्लियर डिसीजन दैट कि हम पॉलिटिक्स और उसको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वी हैव सम अदर पर्पस, कि हम एक स्पेसिफिक, मतलब जो लोग लड़ने जा रहे हैं हमारे साथ, हम उन्हें रियल रीज़न बताएंगे दैट व्हाई वी आर गोइंग टू फाइट ओवर देयर. फॉलोड एन इम्पीरियलिस्टिक एंड एनेक्सेशन पॉलिसी एंड एक्स गुजरात, रणथंभौर, मालवा एंड मेवाड़. गुजरात ही एनेक्स अलोन, बट जो रणथंभौर था वो जलाउद्दीन खिलजी ने पहले पहल की थी कि हम रणथंभौर को conquer करेंगे. बट ही फेल्ड just because of the king, that Chauhan dynasty was very powerful over there. Malwa is in Bihar and Mewar is the region of Rajasthan. Now इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे? इसके पास एक 4 टेक्निक्स थे जिसकी वजह से वो अपनी किंगडम को पावरफुल बना सकता था. जिसमें से पहला ये था कि ऑर्डिनेंस लगाए थे इसने, कि कुछ ऑर्डिनेंस पे बेसिस पे काम करेंगे. He stopped avoiding the means Alauddin took the step to avoid the problems caused by the nobles. Nobles मतलब वो जो
डिसीजंस देते थे, उनके डिसीजंस को पब्लिकली ना आने के लिए उसने ऑर्डिनेंस लगाए थे। इसके 4 ऑर्डिनेंस है। ही इंट्रोड्यूस दाग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स एंड चेहरा, अ डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स को रैंक देना शुरू किया और एक दाग सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें उसने क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस रखना शुरू किया। उसने एक मार्केट फिक्स किया जिसमें ऑफिसर्स एंड टैक्सेस की means मतलब he set up a market and also set up means or and also assigned a officer to look after the treasure and the taxation system. इसने selling of wine and consuming of wine को बंद करवाया. He constructed the Alai Fort and Alai Darwaza, the entrance of Qutub Minar. He also built palace of 1,000 pillars at Hazar Sutun. Amir Khusro was the court of poet of Alauddin. Now Mubarak Khan and Khusro Khan was the last ruler. Means Mubarak Khan was incompetent. इसने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से उसे हिस्ट्री में कुछ मतलब he was memorized. But Khusro Khan he was means Ghazi Malik जो थे वो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे. He just killed this Khusro Khan. He was the last. कायकोबाद also means खुसरो खान क्या थे, उसके लास्ट सेकंड किंग थे. एंड कायकोबाद वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. क्या होता है, कोई भी डायनेस्टी कब हल्की पड़ जाती है, व्हेन देयर इज इनकम्पिटेंट रूलर, यानी कुछ ऐसे रूलर्स आ जाते हैं जो आपको आपकी किंगडम के लिए बहुत ज़्यादा यूजलेस साबित हो. दैट्स वाई द किंगडम स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. Now see, after Khilji dynasty, the Delhi Sultanate was crossing all over just because कि खिलजी डायनेस्टी के आने के बाद राजस्थान के कुछ रीजन्स वर ऑल्सो मीन्स राजस्थान के बहुत सारे रीजन्स भी किसने कनकर कर लिए थे, खिलजी डायनेस्टीज ने, रिगार्डिंग द मालवा, मेवाड़, इवन दो गुजरात ऑल्सो. सो ऐसे करते करते दिल्ली जो सल्तनत है महाराष्ट्र तक कनकर कर चुका था. ओके. So this is it for today. I hope I'm going to give you some questions today.